Good morning, students. In the last video, we discussed the concept of activation energy, and now the next topic is the Arrhenius equation for the activation energy. Arrhenius is the name of a scientist, and he developed a mathematical relationship between the temperature and the rate constant. That is, it is a mathematical relationship between the temperature and the rate constant, and on the basis of the observations from the large number of experiments. Means ये जो हमारे पास observation आई है, it is experimental, and the temperature and the dependence of the rate constant K is expressed algebraically as. relationship किस में लिया है? temperature में and rate constant में, and the value becomes K is directly proportional to E raised to power minus EA upon RT. That is, proportionality का साइन हटा के हमारे पास आ जाएगा K is equal to A E raised to power minus EA upon RT, where A is the constant and it is Arrhenius constant, and this equation is called Arrhenius equation. Now EA is activation energy, R is universal gas constant, and T is the temperature. I am again repeating, K is a rate constant, A is a Arrhenius constant, EA is the activation energy जो हमने पहले कर चुके हैं, R is the universal gas constant, and T is the temperature, and this is known as the Arrhenius equation. Now solving this equation, taking log both side. क्या करना है? हमने दोनों साइड में log ले लेना है. So this equation becomes log of K, log of this one. Now ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये सेकंड टर्म है हमारे पास. सो log, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, that is log A into B, and it's become log A plus log B. जो हमारे पास log A into V का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? log A plus log B. तो यहाँ पे भी हमारे पास बन जाएगा log A plus log E raised to power minus EA upon RT, because A यहाँ पे A है और B यहाँ पे क्या है? E raised to power minus EA upon RT. Then this equation becomes log K is equal to log A plus log E raised to power minus EA upon RT. So E और log, E is the exponential और ये log का उल्टा होता है, so it should be cancelled out. So an equation becomes log K is equal to log A minus EA upon RT. ये क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी है. सो ln इज अ नेचुरल लॉग. इस चैप्टर को स्टार्ट जब हमने किया था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कि ln क्या है? नेचुरल लॉग है, और जब हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको? 2.303 से. सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स log K is equal to log A minus EA upon 2.303 R upon 1 upon T. ये फैक्टर क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ln नेचुरल लॉग को हमने किस में कन्वर्ट किया? LOG में. नाउ this is the equation. Now another form, that is if we having the two temperatures and we having the two reactions, अगर multiple reactions के लिए उसको कर रहे हैं, so now there is another form for the Arrhenius equation. For the first reaction it becomes log K1. यहाँ पे ये A constant और यहाँ पे A1 A2 नहीं आएगा, ये सिंपली A रहेगा, RT1. Similarly K2 के लिए RT2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. Then now subtracting these two equations, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस 1, सेकेंड को 1 में से हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना. सो इक्वेशन बिकम्स log K2 माइनस K1 इज इक्वल टू दिस वन. ये log A और log A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इक्वेशन बिकम्स दिस log A माइनस log B, एंड इट्स बिकम log A अपॉन P. log A और B का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये होता है log A माइनस log B. तो ये हमारे पास था और फिर यहाँ से क्या बन गया? ये था, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे log A अपॉन B. नाउ माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये टर्म आगे आ जाएगी. यहाँ पे हमने ये कॉमन है, ये R कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, एंड
इसके ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह गया 1/T1 माइनस 1/T2 और इसका हम ले लेंगे एलसीएम एंड इक्वेशन बिकम्स log K2/K1 EA/2.303 R T2 माइनस T1, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, देन T1 T2, ये फिर से फैक्टर वही आ गया, नेचुरल लॉग को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉमन लॉग में. सो दिस इज द Arrhenius इक्वेशन. नाउ numerical, we having a numerical that is a certain reaction is 50% completed in 20 minutes at 300 Kelvin. Time given है, temperature given है. Same reaction is again 50% complete in 5 minutes at 350. अब second के लिए भी time भी given है और हमारे पास temperature भी given है. We have to find out the only activation energy. Means ये जो हमारे पास इक्वेशन मैंने आपको बताई, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ निकालने को बोलेंगे. वो कभी आपको किसी का टेम्परेचर या कोई रेट कांस्टेंट या फिर आपको ईए निकालने को बोलेंगे, बाकी सब कुछ हमें गिवन होगा. क्लियर. अब जैसे इस रिएक्शन में भी हमारे को सब कुछ गिवन है, सिर्फ हमने क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है. सो 50% कंप्लीट क्या रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हाफ रिएक्शन है. सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K. अब हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारे को उसका टोटल कॉम्पोजिशन गिवन है कि वो हमारे पास 50% कितने में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हमारे को ये गिवन नहीं है कि उसका रेट कांस्टेंट कितना है. तो हमने यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालना है उसका. सो ये आ गया हमारे पास K इज इक्वल टू 0.693/T1/2. क्लियर. अब हमने जब टाइम यहाँ पे भर देना है 20 मिनट, तो वो K1 हो जाएगा. जब अगेन इसमें टाइम 5 भर देना है तो वो K2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की जो परसेंटेज है वो सेम है, 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है. तो अब K1 कैलकुलेट करेंगे, 0.693/20 मिनट, इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा. सिमिलरली 5 मिनट के लिए इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास K2 आ जाएगा. अब जो हमारे पास Arrhenius इक्वेशन है, एक बार उसको देख लेंगे. log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. अब T1 T2 हमारे को गिवन है 300 350. सबकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया K2 K1 वो पुट कर दिया, T1 T2 पुट कर दिया. ठीक है. हमारे पास R की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 8.314 है, वो पुट कर दी. सिर्फ हमारे पास वैल्यू रही EA की जो हमने कैलकुलेट करनी है. दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सभी साइड में चीज़ें हम उनको उधर ले जाएंगे. ये यहाँ पे डिवाइड में है, वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर. अब इनको दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पे 4 बन गया, log 4 रह गया. इन दोनों की एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, ये यहाँ आ गया हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब EA कैलकुलेट करना है तो ये सारी टर्म्स चले जाएंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई में EA की वैल्यू को हम निकाल लेंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ EA. ये यूनिट्स हमारे पास कैसे आए हैं, जो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के हैं, इसके साथ में लिखने, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, यू हैव टू राइट डाउन द यूनिट्स ऑल्सो. सो ये हमारे पास ये आ जाएगा. सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, the rate constant for the first order reaction becomes 6 times, that is rate constant for a first order reaction becomes 6 times when temperature raised from 350 to 400 Kelvin. हमें T1 given है, हमें T2 given है, we have to calculate the activation energy. हमें rate constant given नहीं है, बट उन्होंने बता दिया है कि एक जो है उसका दूसरे का 6 टाइम है, means K2/K1 that is equal to 6 and T1 गिवन है, T2 गिवन है, R हमें पता है. क्लियर. नाउ हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में. log K2/K1 दैट इज 6 है, EA आ गया, R की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई. देन इसको हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. देन हम EA की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. सो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. इस ये वाले भी और फर्स्ट इंटीग्रेशन वाले भी, वो एग्जाम में आते हैं. एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर ए रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज 0. अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको पहले ही गिवन है, वो कितनी है, 0 है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इफ K इज दिस एट 280 केल्विन. अब हमारे को यहाँ पर टेम्परेचर दोनों गिवन है, रेट कांस्टेंट एक गिवन है और एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है, वो क्या है, 0 है. तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे.
यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई 0, 1/T1 माइनस 1/T2 यहाँ पे वैल्यूज भर देंगे, वो हमें गिवन ही है वैसे, लेकिन हमें पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या होगी, 0। ये बन गया हमारे पास log K2/K1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे ये वैल्यू मैं फिर से लिख देती हूँ, log K2/K1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये स्टेप आएगा। अब हमें पता है कि log, जब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग, या हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये बन जाएगा K2/K1 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0। एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर 0 हमारे पास होता है 1, या आप इसको ऐसे कर लो, या जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि लॉग उधर जाके बन जाएगा एंटी लॉग 0। ये सेम चीज़ है, एक्सपोनेंशियल और एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली जैसे ये है, सो K2 बिकम्स K1। तो जितना आपके पास K1 था 1.6 10⁻⁶, वही आपके पास क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K2 ऑल्सो। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स, रेस्ट यू विल ट्राई। जो आपसे नहीं क्लियर होगा आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।